Hello everyone. In this video I am going to explain you a short story, The Fight, which is given in your It So Happened book in lesson number 6. This short story is written by Ruskin Bond, who was a very famous Anglo-Indian writer. This story is about two boys, Ranji and Suraj, who lived in Rajpur. Rajpur is the name of a place, and there these two boys are living, Ranji and Suraj, about whom we are going to study in this lesson. Ranji had recently shifted to Rajpur, and earlier he was living in Rajputana desert. रंजी अभी अभी शिफ्ट हुआ है राजपुर में, अभी अभी राजपुर में रहना चालू किया है. पहले वो राजपुताना डेजर्ट में रहता था. एंड ही वॉज स्टडिंग इन स्कूल. सो नाउ इट इज़ अ समर वेकेशन टाइम, सो हिज स्कूल इज़ क्लोज्ड एंड ही वॉज हैविंग lots of free time. He was new to that place. He was new to Rajpur, and he don't have so many friends also. He was not having any friend. So this is his vacation time. So he was wandering alone in the forest and nearby hills that surrounded the town. रंजी अकेला था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था अभी, क्योंकि वो नया नया राजपुर में शिफ्ट हुआ था और अभी उसके स्कूल का वेकेशन टाइम चल रहा था, समर वेकेशन चल रहा था. तो उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था, इसीलिए वो अकेले उस एरिया के, उस टाउन के पास में जो हिल्स थे और फॉरेस्ट थे, वहाँ पे वो घूमने जाता था. द अर्थ वॉज ड्राई बिकॉज इट वॉज समर season, so earth was dry and plants were also dry. Everything on the earth seemed to wish that it need some refreshing rain. तो ये समर मंथ था, इसीलिए चारों तरफ सूखा था और सबको रेन का इंतज़ार था, बारिश की इंतज़ारी थी. On such a hot day, Ranji found a pool in the forest, and that pool was very different. It was not muddy pool, it was a clear pool, it was a clean pool. Clean water was there. He could also see pebbles under the water. Earlier when Ranji was living in Rajputana desert, there also he had seen pools, लेकिन but that pool was not so clean like this pool. पहले जब वो राजपुताना डेजर्ट में रहता था तब वहाँ पे भी पूल्स थे, लेकिन वो इस पूल के जैसा क्लीन नहीं था. वो मडी पूल था. Buffaloes were bathing in that pool. Women used to wash their clothes in that pool. So that pool was muddy, dirty. But this pool was having clear water. And when Ranji saw that pool, he felt like swimming in that pool. So he, without wasting any time, he jumped into the pool and swam. तो उसे स्विमिंग करने का मन करता है उस पूल को देख के, और फिर वो उसमें डाइव करता है और फिर स्विम करता है. नेक्स्ट डे अगेन रंजी वेंट देयर फॉर स्विमिंग, वेंट टू दैट पूल फॉर स्विमिंग. ही स्वम देयर फॉर एन आवर एंड देन आफ्टर एन आवर ही सॉ अ बॉय स्टैंडिंग लिटिल बिट अवे and he was staring at Ranji. That boy was slightly older than Ranji and also taller and stronger.
तो नेक्स्ट दिन रंजी फिर से उसी पूल में जाता है, स्विमिंग करता है 1 घंटे तक, और उसके बाद वो एक लड़के को देखता है जो कि उसको घूर रहा था, और वो लड़का उससे बड़ा था, और हाइट में भी बड़ा था, एज में भी बड़ा था, और स्ट्रोंगर भी था. रंजी टॉक टू हिम इन अ फ्रेंडली मैनर because he was having no friends. He wanted to make friends, so he talked to him in a friendly manner. But that boy did not wish to be Ranji's friend and wanted to fight with him. वो लड़के से वो फ्रेंडली मैनर में बात करता है, रंजी फ्रेंडली मैनर में बात करता है, लेकिन उस लड़के को उससे फाइट करना होता है, वो उससे उस फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है. देन देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू बॉयज़, बिटवीन रंजी एंड दैट बॉय. They both have argued on a topic, and that argument became so serious that that stranger boy slapped Ranji hard on his face. उन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और वो आर्ग्यूमेंट इतना सीरियस होता है कि वो रंजी को एक थप्पड़ मार देता है. नाउ देयर वॉज अ वायलेंट फाइट बिटवीन दीज टू बॉयज़. फाइट स्टार्ट हो जाता है. बोथ ऑफ देम स्टार्टेड किकिंग ईच अदर, दे स्टार्टेड हीटिंग ईच अदर, दे स्क्रैच्ड ईच अदर, एंड दिस fight continued for 5 minutes. After 5 minutes, both of them were so exhausted that they could not could no longer fight. Now after 5 minutes, they were so exhausted that now they don't want to fight. वो इतना थक गए कि अब वो fight नहीं करना चाहते थे. So now they wanted to leave from there. But before leaving, that stranger boy, he announced that the fight is not over and it will continue. वो अनाउंस करता है कि ये फाइट ओवर नहीं हुआ है, फिर कंटिन्यू रहेगा. In the same evening, so Ranji went back to his home, and his mother, Ranji's body was paining because he got हिटेड बाय दैट बॉय. उस लड़के ने बहुत मारा था, तो उसको बहुत पेन भी हो रहा था. तो उसकी मदर बोलती है, रंजी की मदर बोलती है कि तुम बाहर नहीं जाना, लेकिन रंजी फिर भी बात नहीं मानता है मदर की, और फिर मार्केट चला जाता है. एंड इन द सेम टाइम, मीन्स इन द इवनिंग, व्हेन ही वेंट टू द मार्केट, ही सॉ दैट बॉय अगेन, दैट स्ट्रॉन्गर बॉय, स्ट्रेंजर बॉय, and both of them saw each other with a very as if they wanted to take revenge from each other. So next day, Ranji was in no mood for a fight. दूसरे दिन रंजी का मूड नहीं था कि वो फाइट के लिए जाएगा, फाइट करेगा किसी के साथ. His body, because his body was paining with that previous day fight, and in that situation he knew well that he cannot win. उसके बॉडी में दर्द था, इसलिए वो फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो अगर फाइट करता भी है तो उसकी जीत नहीं होगी. But still he thought to go ahead to the pool, because if it doesn't go there, means the opponent boy, what he will think? He will think that he has accepted the defeat. Means Ranji has accepted the defeat. But Ranji don't want to get defeated. So he went to the pool to face the opponent. इसीलिए वो डिफीटेड नहीं होना चाहता था, इसीलिए वो पूल पे जाता है. Now when Ranji went to that pool, he hoped that his opponent would have forgotten about the previous day fight. But when Ranji saw that boy, he became hopeless, because that boy was standing there and he was waiting for Ranji, and he was standing on the other side of the pool.
वो जैसे रंजी वहाँ पहुँचता है, वो सोचता है कि शायद वो लड़का भूल गया होगा फ़ाइट के बारे में, लेकिन जब वो उस लड़के को देखता है, वो दूसरे किनारे पे खड़ा रहता है, पुल के दूसरे किनारे पे, तब वो उसको देख के होपलेस हो जाता है, क्योंकि अब उसको पता चल जाता है कि फ़ाइट फिर से होगी। Then that boy gave challenge to Ranji to swim across the pool and come to his side where he was standing. And Ranji also accepted the challenge. Ranji accepted the challenge and he dived into the pool and swam across very effortlessly and very skillfully. तो वो रंजी को जो लड़का था, स्ट्रेंजर लड़का, वो रंजी को बोलता है, चैलेंज देता है कि तुम इस तरफ तैर के आओ, और रंजी एकदम अच्छे से तैर के पहुंच जाता है उसके पास। और वो लड़का उसका तैरना देख के, रंजी को तैरते देख के एकदम चौंक जाता है। क्यों? क्योंकि उस लड़के को तैरना नहीं आता था, लेकिन रंजी को तैरना आता था और वो बहुत अच्छे से तैर के उसके साइड पे पहुंच जाता है। तो ये चीज़ देख के वो बहुत ही मतलब देखता ही रह जाता है, उससे तैरता हुआ देख के, रंजी को तैरता हुआ देख के वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे खुद तैरना नहीं आता था। एंड इन दैट मोमेंट दैट एनिमिटी, जो एनिमिटी इन दोनों के बीच में था, मतलब उस लड़के के मन में जो एनिमिटी था, वो वैनिश हो गया, वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो रंजी को मतलब तैरता हुआ जब देखता है, तो जो दूसरा बॉय था, जो ओपोनेंट बॉय था, उसके मन से एनिमिटी गायब हो जाता है, क्योंकि उसे भी तैरना सीखना था और वो भी चाहता है कि वो भी रंजी की तरह तैर सके। ही वॉन्टेड टू लर्न स्विमिंग फ्रॉम रंजी। वो उससे स्विमिंग सीखना चाहता है, तो इसीलिए उसके मन से जो एनिमिटी था वो ख़त्म हो गया। एंड रंजी वॉज ऑल्सो एग्रीड टू टीच हिम स्विमिंग। तो रंजी भी तैयार हो जाता है कि मतलब वो उसे सिखाएगा, स्विमिंग करना सिखाएगा। एंड नाउ दे बिकेम फ्रेंड। देन द ओपोनेंट बॉय टोल्ड टू रंजी अबाउट हिज नेम दैट ही इज़ सूरज। रंजी को बताता है कि उसका नाम सूरज है। एंड ही ऑल्सो इन्वाइटेड रंजी टू हिज होम फॉर अ मील। और फिर अपने घर पे रंजी को खाने पे बुलाता है। सूरज ऑल्सो ऑफर्ड टू रंजी दैट ही विल टीच हिम रेस्टलिंग। वो रंजी को ऑफर करता है कि वो उसे रेस्टलिंग सिखाएगा, क्योंकि वो रेस्टलिंग में बहुत अच्छा था। तो वो रंजी को बोलता है कि वो उसे रेस्टलिंग सिखाएगा, और रंजी उस लड़के को यानी कि सूरज को स्विमिंग सिखाएगा। देन दैट बॉय डिक्लेयर्ड दैट दे वर now friend, they were no more enemies, and he also announced that the pool was theirs। वो जो pool था वो उनका है, and no one would be allowed to swim in it without their permission। और बिना उनके परमिशन के कोई भी अदर वहाँ जाके स्विमिंग नहीं कर सकता है। रंजी बिकेम वेरी हैप्पी। वो रंजी बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ही वॉज अवेयर दैट ही हैड वॉन सूरज एप्रिशिएशन एंड रेस्पेक्ट। रंजी हैप्पी होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने सूरज का जो रेस्पेक्ट था वो जीत लिया, सूरज का जो एप्रिशिएशन था उसको मिल गया। सो मोरल इज़ we should not fight with anyone, instead we can learn something from each other। हमको किसी से फाइट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके अंदर जो भी अच्छाई है उसे सीखना चाहिए। So I hope you have understood the story. Thank you.